Good evening. Welcome. You are watching the News Hour Agenda. I am Padmaja Joshi. It is often said that justice must not just be done, it also must be seen to be done. And today, that happened. Asad Ahmed and Mohammad Ghulam, both accused in the murder of Umesh Pal, were shot dead by the UP STF between 12:30 and 1 in the afternoon. The encounter took place on the outskirts of Jhansi. Asad Ahmed was seen on the 24th of February killing Umesh Pal in cold blood. We are told that this was deliberate. The entire murder was planned and carried out in a fashion to show the world that Asad's now going to be the new boss of the Atiq Ahmed gang. That he is the new Don since his father and elder brothers are in jail. Umesh Pal's murder was supposed to be Asad's initiation as the new king. The same applies to Mohammad Ghulam. He is Atiq's practiced shooter, a trusted man. On the day of the murder, he waited for Umesh Pal in a shop close by and then shot him at close range. Mind you, Umesh Pal had sustained 13 bullet wounds. 6 bullets had passed straight through him. One was found lodged in his body during post-mortem. Now, what happened after the encounter? The advocates for these mafia quickly came crawling out of the woodwork. They suddenly remembered the Constitution. They reminded you of the law. They bemoaned the bypassing of courts. They ignored the fact that these were men who have killed policemen. These were men who have threatened, in fact, terrorized the court and judges. Everyone knows of how 10 judges of the Allahabad High Court recused themselves from hearing the bail petition of Atiq Ahmed. These bunch of people who are now pleading for Atiq Ahmed ignore the fact that Asad and Ghulam opened fire at the STF first. That is when they were killed. But these people are unhappy because criminals have been killed. These people say these criminals were killed because they were Muslim. ये बताओ, ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे इन ऐसे मामला को। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। Now give me some time to debunk this ridiculous and cynical communal spin being given to the encounter of two men who were gangsters. You've heard so far of Atiq, of Ashraf, of Ghulam, of Asad. Have you heard of Rukhsana and Sadiq? You will not know them because Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi will never tell you about these two. This husband-wife duo have been living under the fear of death for the last 18 years. And who has threatened them? Atiq and gang. Why? Because Rukhsana and Sadiq are the main witnesses in the murder of Raju Pal in 2005. Umesh Pal, by the way, was also a witness in the same murder. Now, this February, after Umesh was shot dead in broad daylight, Rukhsana and Sadiq are petrified. They were sure that they would not get justice, that Atiq's free run would continue, and Atiq would kill them next. So today, if somebody says that Atiq and Asad and Ghulam are victimized for being Muslims, you must ask them, who is victimizing Rukhsana? Who has put Sadiq's life in danger? Who is responsible for terrorizing this couple? And also remember that despite that, these two never backed off from their testimony in Raju Pal's murder. और राजू के गोली इतनी लगी, 2 गोली हमारे लगी
और हम अभी डरते हैं। हम सोचते हैं कि जो बताएंगे अदालत में कहेंगे। अभी हमें बहुत डर लगता है। कल हमारा भाई गेहूं कटवाने गया था, उसको ने मुबारक ने धमकी दिया कि तुम्हारी बहन बहुत मीडिया में देती है, देखो उमेश पाल के तरह हम हार करी थी, देखी कैसे ही कोर्ट में पहुंचती है। जो उमेश पाल का हुआ वो सब छिपा नहीं है, सब आपके सामने है। और यही हश्र मेरा भी होगा, क्योंकि आज तक मुझको धमकी दी जा रही है। कुछ लोग मेरे पास, मेरे अजीज रिश्तेदारों के पास पहुंच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब भी बाज आ जाओ, अपने रिश्तेदार सादिक और रुखसाना को समझा दो कि उस वाले अतीक वाले और अशरफ वाले मुकदमे में वो गवाही ना दें, नहीं तो उनका हश्र वही होगा जो उमेश पाल का हुआ था। इन माफिया के खिलाफ गवाही देना मौत को दावत देना, माफिया के खिलाफ गवाही देना, मौत को दावत देना, या तो जो अतीक अहमद का फंडा है या तो किसी फर्जी मुकदमे में आपको फंसा करके वो जेल भेज देता है। So the question now is, and the question one must ask of all of these politicians, when they cry for Atiq, Asad, Ghulam, why do they stay quiet about Rukhsana and Sadiq and other Muslim victims of these mafia? They tell their voters and followers that Muslims are being picked up by the Yogi government and killed. Why don't they tell their voters also that these gangsters' biggest victims are in fact poor Muslims? Or do they do it because they actually don't care for Muslims at all? What they do care for are Muslim votes, which comes only from perpetuating a false sense of victimhood by painting mafia, criminals, gangsters as some kind of victims. You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Prem Shukla, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Manoj Kaka, spokesperson of the Samajwadi Party, Nilanjan Das, political analyst, Sohail, political analyst, and Sankeet Yanagi, who is an advocate. I want to start by asking you, Manoj Kaka ji, आज बहुत सारे लोग बोल रहे थे, आज ये सवाल उठाए गए, शफीउर रहमान बर्क बोल रहे हैं कि मुसलमानों को उठा करके इस तरीके से मारा जा रहा है, पर ये जो मुसलमान माफिया है, उसके सबसे बड़े विक्टिम तो रुखसाना जैसे लोग हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। आप रुखसाना जी के लिए क्यों नहीं बोलते? आप सिर्फ अतीक के लिए क्यों आंसू बहाते हैं? नहीं, कहीं व्यक्तिगत रूप से अतीक के लिए आंसू नहीं बहाया गया। ये कुछ बहुविज्ञापित और बहुप्रचारित जो लोग गुलामी कर रहे हैं सरकार के, वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल उस पर है कि आपको कम से कम इस देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर इसी उत्तर प्रदेश में हुए। आगरा का सवाल मैं समझता हूं कि आपके संज्ञान में जरूर होगा। सर, आप इधर उधर की बात मत कीजिए ना। आप पूरे दिन पैरवी करते जा रहे हैं अतीक की, असद की, गुलाम की। आप रुखसाना की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? आप में से कोई भी एक बार जाकर के सादिक या रुखसाना से मिला है? क्या हालात बना रखा आप लोग? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं तो इधर उधर बात आप नहीं दे रहे हैं ना। आप कानपुर कहां पहुंच गए? आप प्रयागराज में रहिए। प्रयागराज में 18 साल से रुखसाना और सादिक अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं अतीक अहमद से। अखिलेश जी, आप कितनी बार गए उनसे मिलने के लिए? जब हर हफ्ते उनको आकर के धमकाया जाता है, समाजवादी पार्टी उनका केस क्यों नहीं लड़ रही है? अगर आपको मुसलमानों की चिंता है, रुखसाना है मुसलमान जो कि खड़ी हुई है पिछले 18 साल से, ये कह रही है राजू पाल मेरा भाई था, उसके हत्यारों को मैं नहीं छूटने दूंगी, मैं जाऊंगी कोर्ट में। ये मुसलमान के लिए आपको कोई दर्द नहीं है, क्यों? उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों की और अल्पसंख्यक वर्ग की लगातार हत्याएं की जा रही हैं। आपने एक सवाल नहीं खड़ा किया। आप मेरी चिंता मत कीजिए सर, आपको दलितों पिछड़ों की पड़ी है। पहले आप मुसलमानों की बात कर लीजिए, अब आप दलितों पिछड़ों के पीछे मत छुपिए। मैं आपको दलित पिछड़ों के भी आंकड़े दिखाऊंगी आपको। पहले आप ये बताइए कि आप रुखसाना सादिक से कितने बार मिलने गए? अखिलेश जी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो इन लोगों को धमका रहे हैं, जो इनको जाकर के बंदूक की नोक पर धमका रहे हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं? कितनी बार आप लोगों ने बोला? बताइए। चिंता है आपको ऐसे मुसलमानों की? अपराधी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो बाजार खड़ा करते हैं, जो अपने जमीर को गिरवी रखे हुए हैं, सर, आप किसी बाजार और जमीर पे मत जाइए सर। जो लोग माफिया की पैरवी करते हैं ना, वो तो जमीर की बात ना ही करें। माफिया को आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, फिर आप जमीर का लेक्चर दे रहे हैं। हेमंत यादव किसी का बेटा नहीं। आपको चुप क्यों रही है ये बात? आपको पता भी था, जब आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आपको पता भी था कि रुखसाना और सादिक नाम के कोई लोग भी हैं, या सिर्फ आपको मुख्तार और अतीक ही दिखते हैं मुसलमान? चलाई जा रही है।
हम किसी भी अपराधी और अपराध के खिलाफ हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। जो लोग दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग, उनका आप नाम ले लीजिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया की जाति क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके संज्ञान हेतु। मुख्यमंत्री जी के स्वजाति हैं, लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश में। पद्मजा, आप तो एक वैश्विक पत्रकार हैं, आप जानती होंगी। मैंने तो वाजिब सवाल आपसे किया कि इस देश सेवा करने वाले व्यक्ति के बेटे हेमंत यादव की दोनों आंखें फोड़ के निर्मम हत्या कर दी गई। निशा यादव की, हमारे आकाश गुर्जर अपने देश सेवा में जा रहा था और उसको उत्तर प्रदेश के पुलिस ने फेक इनकाउंटर में मार दिया और अदालत ने उसको माना है। 2 पुलिसकर्मियों पर FIR लाज हुआ है। ये सब सवाल है और सारे सवालों को लेकर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने अनैतिक और असंवैधानिक और जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है। हम फेक एनकाउंटर पे एक सेकंड में आएंगे। आपको कैसे पता है फेक एनकाउंटर, मुझे नहीं पता, पर अब आप स्वजातीय बात कर रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, अगर आप असद को मारते हैं और मोहम्मद गुलाम को मारते हैं और अतीक को घसीट के साबरमती से प्रयागराज लेकर के आते हैं, तो स्वजातीय लोगों में भी एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। माफिया में भी एक कास्ट सेंसस करके आप एक इस जाति का और एक उस जाति का एनकाउंटर क्यों नहीं करते? देखिए, हर जाति का अपराधी अपराधी है। उसकी जाति, गोत्र, मजहब देखकर काम करना ये समाजवादी पार्टी का काम रहा है। मजहब देखने के कारण ही एक पार्टी विशेष के लोग, आपको पता है बाटला हाउस एनकाउंटर में बलिदानी मोहनचंद शर्मा के साथ खड़े होने की बजाय बाटला हाउस के आतंकवादियों के साथ खड़े रहे। एक मजहब विशेष के लोगों को प्रसन्न रखने के लिए ही उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए गए और हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। कालांतर में जिन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए थे उनको कोर्ट ने अपराधी माना और मृत्यु दंड की सजा दी। ये मजहब के नाम पर करते रहे। मजहब के नाम पर ही जब अतीक अहमद ने 2005 में राजू पाल की हत्या की तो उसका FIR में नामजदगी 2007 में हुई। ये मजहब का ही कारण था कि मजहब के कारण ही इन्होंने एक माफिया को 2012 में जब वो बेल कर एप्लीकेशन लेकर गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 जजेस ने उसका जो एप्लीकेशन है अपने साथ सुनवाई करने की बजाय रिक्यूज कर लिया। रिक्यूज किस लिए कर लिया होगा आप सहज उसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद आज जो है ऐसी स्थिति है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो हाजिर होता है। अगर उसका बेटा पुलिस पर गोली चलाए, जो पहले 2 पुलिस वालों की हत्या कर चुका है, अगर उसके शूटर जो है वो विटनेसेस को धमकाएं, राजू पाल हत्याकांड में एक विटनेस को मार दें, उनके पुलिस गार्ड्स को मार दें, शेष लोगों को धमकाएं, तो क्या किया जाना चाहिए? उनकी आरती उतारी जानी चाहिए। राज्य का दायित्व है। अगर सामने माफिया खड़ा है, फायरिंग कर रहा है, वो राउंड्स उसने चलाए हैं, उसके पास 3 गन है, तो क्या पुलिस है कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है, इसको नहीं मारना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि कल मनोज काका जी कहेंगे कि ये क्या तरीका है स्वजातीय। नहीं, वो अतीक अहमद के पास जाए और कहे कि आप कोई ठाकुर गैंगस्टर है तो बताओ, स्वजातीय मारने का टर्न है अभी। ठाकुर गैंगस्टर का प्रेम शुक्ला जैसे लोग नाम नहीं ले सकते। मैंने कहा तो आपसे मैंने एक साधारण सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची निकाली जाओ। ये बताइए आदित्य राणा कौन है? एक नहीं, आदित्य राणा कौन है? अरे मेरी भी सुन लो, ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, अब आप कोई कॉन्टेस्ट थोड़ी ना है। बोलेंगे नहीं। अब चलिए हम हर चीज का हम कास्ट सेंसस कर ही रहे हैं और जाति धर्म निकाल ही रहे हैं, तो कुछ नाम गिना देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, 12 अप्रैल, नोटोरियस क्रिमिनल नेम आदित्य राणा शॉट डेड इन पुलिस एनकाउंटर इन यूपी's बिजनौर। उनके 6 और गुर्गे जो है जेल में है। मार्च 2023 आनंद सुभाष यादव गैंग का मेंबर है, जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया। उसके बाद एक और आदमी जिसको मारा गया जौनपुर में। पर क्या ये स्वजातीय है हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है पद्मजा कि हम लोग राष्ट्रीय चैनल पर आज ये बहस कर रहे हैं और पता नहीं, मुझे तो बड़ा मतलब कहा जाता है कि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, बहुत जिसको कहते हैं ना कि थिक स्किन्ड होते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि जिस अपराधी की CCTV में
बाकायदा फुटेज है, और वो कोई ऐसी वैसी हत्या नहीं कर रहा है कि किसी से कोई झगड़ा हुआ, गोली मार दी, कोई एक व्यक्ति था उसको मार दिया। ये बाकायदा किसी के घर पर चढ़कर, और क्या कहेंगे, वो फिल्मों में भी ऐसा आतंक नहीं दिखता है। और कमाल की बात यह कि ये जिस तरह से हत्या, इसके पहले वैसी ही हत्या का ये गवाह था, और उस पर अगर पार्टियों के नेता आकर ये कहानियां सुना रहे हैं तो देश के लोगों को ये दिख रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये अखिलेश यादव जैसे लोग, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता रक्षा मंत्री रहे हैं, ये कैसे, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या ये मुसलमान को भी बुरा बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान को अपराधियों के साथ खड़ा रखना चाहते हैं, जो ट्वीट करते हैं कि भाईचारा हट जाएगा। मैं जानता हूं कि मनोज काका जी बहुत उत्तेजित है, कुछ भी बोल रहे होंगे, उनकी बात का बुरा मत मानिए, इस वक्त तो हिल गए हैं, इसलिए एकदम उनको ये किसी भी स्थिति में आप कैसे ठीक ठहरा सकते हैं? बताइए मनोज काका, सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिए। ये कहना कि एक माफिया के मारे जाने से भाईचारा खत्म हो जाएगा, ये ना सिर्फ मुसलमानों का इंसल्ट है, ये उत्तर प्रदेश का इंसल्ट है, ये भाईचारे का इंसल्ट है। ये आदमी भाई था, ये भाईचारे में कोई विश्वास नहीं रखता था, ये एक गैंगस्टर था। पद्मजा, आप उसके दूसरे संदर्भ में देख रही होंगी। इस सवाल का जवाब यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लगातार इस तरह से कि लोगों के जो शिक्षा का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, सर ये बताइए ना कि दो माफिया के मरने से भाईचारा कैसे बिगड़ेगा? दो माफिया के मरने से भाईचारे बिगड़ने का क्या मतलब है? क्यों बिगड़ेगा भाईचारा? उस माफिया के इस संदर्भ में नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का हर काम ही इस तरह से है कि भाईचारा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी का। आप एक उसको बड़े व्यापक पैमाने पर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से गुलाम की कर रहे थे, तो शायद मुझसे भूल हो गई। हर्षवर्धन जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, व्यापक तरीके से बोल रहे थे अखिलेश जी। ना आप एक ही विषय पर क्यों ले जा रही हैं? हमारे नेता ने कोई बात कही है तो राष्ट्रीय संदर्भ में। अरे सर, क्योंकि इसको कहते हैं अंग्रेजी में डॉग व्हिसल। आप अगर आपको लग रहा है कि बहन जी को मुस्लिम वोट खिसक रहा है, हमने फटाफट से जाकर के दो माफिया पे अपनी पॉलिटिकल बैंडवैगन जोड़ दी और कहा भाईचारा खत्म होगा। क्यों? ये क्या डॉग व्हिसल है? क्यों भाईचारा खत्म होगा? किसका भाई था असद? किसका भाई था गुलाम? किसके सगे थे ये लोग? खुद के लोगों को, मुसलमान समुदाय के लोगों को लूटते थे, डराते थे, उनका शोषण करते थे, और इनके मरने से भाईचारा बिगड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी पर यह व्यापक बात हो रही है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आई वांट टू बिगिन द अदर्स। यस पद्मजा, मुझे सचमुच नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को आज जब एनकाउंटर हो जाता है तो भाईचारा याद आता है। अगर व्यापक संदर्भ में बात करनी तो आप करिए ना धरना प्रदर्शन आंदोलन, आपको किसने रोका है? लेकिन आप हर बात में हिंदू मुसलमान और मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह की पैरोकारी ये भारतीय राजनीति को कहां ले जाकर गिराएगी? देश की जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप लोग भी इससे बाहर निकलिए। अगर कोई कानून का राज खत्म करना चाहता है, उसको कानून खत्म करेगा ही करेगा, ये तय मानिए, यही लोकतंत्र में होता है। अब ये बताइए, लेट मी गो अक्रॉस इन फैक्ट टू आसिफ सोहेल ऑल्सो। आसिफ सोहेल, आज ओवैसी जी ने कहा कि धर्म देख करके लोगों को उठाया जाता है, तो शायद अतीक अहमद भी धर्म देख करके ही लोगों से उगाही करते थे। क्योंकि मैं आपको जीशान की बात सुनाना चाहती हूं। जीशान की क्या गलती है? उनके पास पुश्तैनी जमीन है प्रयागराज में। अतीक अहमद के गुर्गे आए, कहा अपनी जमीन मेरी बीवी के नाम पे कर दो, नहीं तो तुम्हारे सर में गोली मार देंगे। तो अब आप जीशान की बात सुनिए और फिर पता करते हैं कि किसके धर्म को देख करके कौन क्या करता था। सुनिए। ऐसा है कि देखिए, आप ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हमारी बहुत बेशकीमती जमीन है, बाप दादा की जमीन है। तो इसी को वो हड़पने के लिए बहुत समय से लगा था, कम से कम 5-6 सालों से मुझे टॉर्चर कर रहा था। फिर हम लोग एक दिन अपने इसी यहीं पे बैठे हुए थे के साथ कि ये अतीक अहमद अपने गुर्गे आसाद का लिया और अली अतीक अपने बेटे को भेजता है 25 लोगों के साथ। उन लोगों को घेर के तुरंत जो है पिस्टल राइफल कट्टा सटा देते हैं और कहते हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो उससे मैंने कहा है ना कि जमीन या तो साजिदा परवीन के नाम लिख दे, मेरी बीबी के नाम, नहीं तो मुझे 5 करोड़ पे रंगदारी पहुंचा दे। तो जब मेरी कुछ देर बाद आवाज नहीं निकलती है तो वो तुरंत उधर से कहता है कि अबे अली, लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मार खत्म करो सालों को। तो बड़ी बुरी तरीके से मारा गया।
बताइए आसिफ सुहेल, ये तो मुसलमान ही है बेचारा जिसकी जमीन हड़पने की कोशिश ये मुसलमानों का मसीहा अतीक अहमद कर रहा था। सुनिए आप मेरी बात। पद्मा जी, मैं सरप्राइज हूँ देखकर कि गोडसे की जो एक सोच है, जो बंदूक पे चलती है, लोगों को मारकर आज उत्तर प्रदेश में वो चीज़ दिखाई दे रही है जो गलत है। कानून है, कानून के हिसाब से चलना है। देखिए, जुर्म का कोई मजहब नहीं होता। जो जुर्म करने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका कोई मजहब नहीं है, जुर्म उन्हीं का मजहब है। तो कोई भी जुर्म को साथ नहीं देता। बट हमारे पास एक उत्तर प्रदेश में आप देखिए, पिछले टाइम से 10,000 के करीब एनकाउंटर्स किए गए, जिसमें से 37% एक ही समाज के मुसलमानों के है। वो चीज को नजरअंदाज नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हो या यूनाइटेड नेशंस भी ये चीज के ऊपर बताया गया। एक जंगल राज की तरफ चल रहे हैं। समझ रहे हैं, आप खुद की बात को कट कर रहे हैं। 37% आप कह रहे हैं जितने एनकाउंटर किए गए थे 37% मुसलमान हैं, यानी कि 63% तो नॉन मुसलमान है ना भाई। मुसलमान थे उसमें। तो फिर मुसलमानों पे जुल्म कैसे हो रहा है? वही बोल रहा हूं ना। तो आप एक टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है? आप देखिए, आप एक संविधान का एनकाउंटर नहीं कर सकते, तो मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है? सुनिए आप 63% एनकाउंटर में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू है, या नहीं तो आप ही बोलिए। आप 63% हिंदू है एनकाउंटर में जो मर रहे हैं, तो मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है एनकाउंटर में, ये बताइए। मैं वही बोल रहा हूं। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं, जुर्म का कोई मजहब नहीं होता है। कानून है, कानून के हिसाब से उन्हें सजा देना चाहिए। फांसी पर लगाइए आप। देखिए, तो अब ये तो खुला यहां तो बताया जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है, ब्रांड एम्बेसडर, जो खुले आम एक मजहब को देखकर मारा जा रहा है। जब ये इनकी फेलियर है, उनको अपने चार्जशीट के ऊपर उनके सुनिए मैडम, आप उनके चार्जशीट के ऊपर उनके जो बनाए हुए मुकदमे, उनके ऊपर उनको यकीन नहीं है। कोर्ट तक क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं आप? कोर्ट के ऊपर आपको यकीन नहीं है क्या? हिंदुस्तान की जुडिशरी पे आपको यकीन नहीं है क्या? बताइए आप मुझे। आसिफ सोहेल साहब, ये बताइए, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि मुसलमान गैंगस्टर है, मुसलमान विक्टिम है, तो अगर सरकार उस गरीब मुसलमान जिसकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है उसको बचा करके एक माफिया को मार रही है, तो उसको एंटी मुस्लिम कैसे कहा जा सकता है? यहां विक्टिम भी मुस्लिम है, माफिया भी मुस्लिम है, तो मुसलमान विक्टिम को बचाने के लिए मुसलमान माफिया को मारना एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? आप ही तो बोल रहे हैं ना, माफिया होता है। आप खुद टैग लगाकर बता रहे हैं कि मुसलमान माफिया, तो यही हो गया ना। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में इनके फेलियर को छुपाने के लिए एक पोस्टर बॉय बनाकर अतीक और उसके फैमिली को बताया जा रहा है। बराबर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो भी जुर्म किया है अतीक ने, उसको उसकी सजा बराबर देना चाहिए। पर ये एनकाउंटर गैंगस्टर का मजहब या किसी विक्टिम का मजहब सिर्फ आप जैसे नेता ही देखते हैं, पुलिस ये सब नहीं देखती। पुलिस के लिए संजय राणा भी वही होता है और असद अहमद भी वही होता है। वो मैडम क्या चीज देखती है पुलिस ने? मैडम, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो मशहूर है, क्या चीज देखती है तो मालूम है। नाम बोलकर घर तोड़ते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं, बुलडोजर की सियासत होती है, नाम बोल के लॉ रैंडम बातें कर रहे हैं। आपके पास क्या तथ्य है पता नहीं। आप क्या गैंगस्टर्स को भी कपड़ों से पहचानते हैं? प्रेम शुक्ला, आपका मॉडल ही यही है आपका, प्रेम शुक्ला। पद्मजा जी, देखिए टारगेट किलिंग क्या है। पद्मजा जी, देखिए टारगेट किलिंग क्या है कि उमेश पाल को, राजू पाल को टारगेट किया गया। अब सुन लें जनाब, जरा सुन लें थोड़ा। धन्यवाद, जरा आभार, जरा सुन लें, शुक्रिया जनाब, जरा सुन लें। आपने बोल लिया ना। टारगेट किलिंग क्या होती है समझिएगा पद्मजा जी। टारगेट किलिंग है कि अतीक अहमद टारगेट करता है राजू पाल को, उसकी किलिंग कर देता है। टारगेट किलिंग और दौड़ा कर बीभत्स ढंग से रपेट करके मारता है। टारगेट किलिंग क्या है कि उमेश पाल को उसके बॉडीगार्ड्स के साथ जो पुलिस दल के कर्मी हैं उनको मारता है। कल्पना कीजिए कि उमेश पाल के जो बॉडीगार्ड्स हैं उस दिन उनकी जो है वो राइफल काम कर गई होती और अगर ये मारा जाता असद, तो ये कहते टारगेट किलिंग है। अरे टारगेट किलिंग जो है असद प्लान कर रहा था, जो आज एसटीएफ के चीफ ने बताया कि अपने उस गिरोह के लिए पुलिस वालों के कारवां पर हमले करने की टारगेट कर रहा था। तो टारगेट किलिंग करने वाले अतीक अहमद
टारगेट किलिंग करने वाले अतीक अहमद का परिवार, टारगेट किलिंग करने वाली एक पूरी जो है मजहबी बिरादरी, और उस टारगेट किलिंग को जो है अगर नागरिकों की रक्षा की जाए, अब पुलिस वालों को गोली चल गई होती, पुलिस वाले मारे गए होते, जिस तरह से गुलाम ने और असद ने तैयारियां रखी थी, तो मारे जाते जवान, तो वो तो टारगेट किलिंग नहीं थी। लेकिन अगर सामने से गोली चल गई और असद मर गया, तो चूंकि भाई मरा कौन है, इनके मजहब वाला मरा है। भाई अफजल गुरु कोई टारगेट किलिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा टारगेट किलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार ने तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सबके मनाही के बाद अफजल गुरु याकूब मेमन उन्होंने कहा टारगेट किलिंग है। ये तो अजमल कसाब की टारगेट किलिंग कह रहे थे। भाई ओपन एंड शट केस है कि अतीक अहमद का बेटा गोलियां चला रहा है, उसके परिवार के लोग बम चला रहे हैं, 2 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जा रही है, उमेश पाल को मारा जा रहा है, उसके बाद अन्य विटनेसेस को कहा जा रहा है तुम्हारा उमेश पाल कर देंगे, और वो पुलिस के कार्यों पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट किलिंग कर सकते हैं क्योंकि उनका एक मजहब विशेष है। Actually, politicians talk about the caste and religion of a person based on whether it is of interest to them and politically expedient for them or not. They will talk about the religion of the mafia who has been killed. They will not talk about the religion of their victims. They will not talk about the fact that Raju Pal and Umesh Pal themselves were from OBC category. They will not talk about the fact that the policemen who have been killed by these people also have been from backward community. They will not talk about the fact that their victims in Prayaraj who have been victimized, who have been threatened, who have been terrorized are also from the lower caste. Many of them are Muslims. You've heard 3 of them already. Now listen, Nilanjan Das, to Sabir Hussain. Sabir Hussain is a witness in another murder case of Atiq, and here is what Atiq has done to him. देखिए, हमें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि मेरे लिए एक एक सेकंड और एक एक मिनट मेरी मौत और जिंदगी का सहारा रहता था कि कब ये मेरी हत्या कर देंगे, कब मेरा अपहरण करा लेंगे। मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अक्सर मांगी जाती थी। अगर रंगदारी नहीं दोगे तो मकान खाली करो, मकान रजिस्ट्री करो, जान से मारने की धमकी अक्सर मुझे दी जाती थी। Nilanjan Das, Sabir, Rukhsana, Zishan, all Muslim victims of the so-called Muslim gangster who people are bemoaning today. Who do you sympathize with? No, I sympathize with channels like you because you are condoning extrajudicial killings. I mean, from the very beginning of the show, you are calling this encounter justice. How do you know it's extrajudicial? I mean, this is nauseating. How do you know it's extrajudicial? You can take a pill for your nausea, but meanwhile, how do you know it's extrajudicial? Of course it's extrajudicial. You don't know what is the meaning of extrajudicial killing. You don't know what is encounter. No, I don't know. An encounter is if somebody fires at you, you are well within your rights to fire back in self-defense. You host shows like this and spread communal venom. So you don't have to worry, and this is not about your analysis of shows. You can please write it on Twitter later. Right now, answer the question, who do you sympathize with? Do you sympathize with Sabir, Rukhsana and Zishan, or do you sympathize with Atiq, Asad and Ghulam? Who do you sympathize with? Our constitution. I sympathize with our judicial system. It so why is it that you did not sympathize with these people when their lands were being grabbed by the likes of Atiq and Asad? In broad daylight. And you, the media channels like you, are condoning it. No. We are saying that justice should be done to the real victims, not mafia who are being painted as victims by politicians like you. Condoning the actions of the if you really care, you should go and stand with the real victims in this story and ask for action against Atiq. Instead of questioning action because of his religion, his caste, his background, his mental state, the fact that he was a very shy person, the fact that he wanted to one day become a doctor, you should question why is he a criminal? Why are you rattled? I am not rattled at all. Of course you are. Why are you I am actually not rattled but slightly bemused and sad that you would choose to identify a criminal by his religion. Constitution. You don't even know that encounter killing is extrajudicial. You don't even know that.
Okay, I will let Harshvardhan Tripathi respond to that, and I will answer your question then with some data. You do not know, sir, that there is a magisterial inquiry that takes place in every encounter, and of the inquiries that have taken place, the Yogi government has got a clean sheet in every single one, and the court has accepted the closure report given by the police. You do not know that, but you sit here and give bhashan. But never mind. Harshvardhan Tripathi, when people like you celebrate an encounter, you are displaying your bloodlust, and you are anti-constitution also. पद्मजा, इस देश के संविधान, इस देश की सीआरपीसी, आईपीसी, इस देश में जो सरकारें चुनी जाती हैं, उन्हीं के तहत पुलिस को हर साल आधुनिक हथियार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 303 राइफल जब थी पुलिस वालों के पास, तो उन अपराधियों के पास AK-47 और AK-56 पहुंच गई थी। जब पुलिस वाले पुरानी जीप में चलते थे, तो उन अपराधियों के पास शानदार SUV और दूसरी गाड़ियां आ गई थी। अब पुलिस उनसे ज्यादा इक्विप्ड है। अब पुलिस के ऊपर गोली चलती है तो उसका जवाब वो देते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी एनकाउंटर से मारे जाने के पक्ष में नहीं है। ये होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधी जो साफ साफ दिखाए सीसीटीवी फुटेज में कि वो पुलिस की वर्दी का भी सम्मान नहीं करते, वॉर अगेंस्ट स्टेट करते हैं, ऐसे लोगों की अगर पुलिस से मुठभेड़ होगी और वो पुलिस पर गोलियां चलाएंगे, तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। ये संविधान उनको भी अपनी प्राण रक्षा का अधिकार देता है। ये सबके ध्यान में होना चाहिए। Now, let me give you some statistics. Magisterial inquiries have been completed in 74 encounter deaths that have taken place between 2017 and 2020. Police have been given a clean sheet and all. In 61 cases, closure reports have been filed by the police and has been accepted by the court. But let me get in Sanket Yanagi now. Mr. Yanagi, I want to show you another picture. And I have to repeat that I am doing this dissection of caste and religion only because it was the unfortunate issue brought up today by the likes of Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi. Now let me show you the picture of two men whose only job was to be the guards of Umesh Pal. The first one's name is Raghavendra Singh. The second one's name is Sandeep Nishad. Raghavendra Singh was 24 years old. He was going to get married in May. Do you know that Raghavendra Singh had his right arm blown off because Guddu threw a bomb at him? He stayed alive for 3 days and he died because his arm got infected and the infection spread to the rest of his body. He died the kind of painful death that none of us can even imagine. Shouldn't these two people also get justice? They were gunners of Umesh Pal. What was their fault? Firstly, let us understand, any offense against a human body or any crime is not just an offense against an individual, but against the society as a whole. And that is how the criminal jurisprudence has a different tendency to approach, that anyone can set the criminal law in motion, not just the aggrieved. So looking at this scenario, whether someone has been killed by an individual or by the police, more than that, no one is permitted in law, especially in India, because India is governed by the rule of law. Rule of law has to be followed and the procedure established by law has to be followed. Okay. Anyone takes the law into their own hands, whether it's a criminal accused or be it anyone else. I'm sorry to interrupt you for a second because